I have taken your permission, and I'm assuming that you have all agreed to yes, you may record the class. Okay. Now see, uh, as I said, we have our paper named as calculus, which we'll be studying in this semester. And this calculus paper that we are going to study is basically going to deal with just a single variate calculus that we'll be studying with us. That means we'll be talking of one independent variable that we'll denote by x and one dependent variable that we denote by y. Okay. Now, when we say x and y, they are variables. Okay. Now, can anybody give me an answer as to what is a variable? किसको कहते हैं variable? Ma'am, x and y can take any value, so it is variable because it can take any value. Anybody else? Ma'am, the variables are those things whose values change. Like they can change on the situation. They can change depending upon the situation. Tanu, if the screen is not visible, probably there is a problem at your end. Maybe log out and log in again. Okay. But then along with variables, we have another term which we call as parameters. So parameters और variable में कोई difference है? Okay, we'll leave that for the time being. We won't spend time on that. So we'll assume that variables are basically your things or terms that take on values but within a specific interval. Okay, now your interval can be anything. Your interval can be a finite interval AB. Your interval can be the whole real line minus infinity to infinity as well. Okay, now when we have variables, obviously what we do, that means we attach, we actually have some real life problem with us. Okay, for example, I am interested in studying the growth of a population. Okay, now when I'm talking of population, the population can be of human beings, the population can be of some bacteria in a medium, the population can be of some animals, the population can be of anything, right? Now, obviously, when we have a population, definitely population, the growth of population basically depends upon what? Time. So that as time passes by, how much is going to be my population? Okay, so in this case, what happens is that if I denote my population by x and I denote my time by t, what is happening? That as t changes, x also changes, right? So that means the changes in x are dependent upon the changes in time. Okay, so what we do? We denote t as one variable and x as another variable. But because x is dependent on t, that is why we treat t as the independent variable and we treat x as the dependent variable. And that is why we denote x as some function of time. Okay, now that means the moment we have variables that we have identified as dependent and independent, it amounts to, वो तो नाम ही बता रहा है, when we say a dependent variable, say if I say y is my dependent variable, that means what? Y किसी के ऊपर depend कर रहा है, right? So जो चीज depend कर रही है, that becomes my dependent variable. और जिस पे वो depend कर रहा है, that is my x. That becomes my independent variable, right? Now, the thing is that if there are two variables associated
with one real life situation, that means they follow some rule. I mean, they enjoy some relationship amongst themselves. ठीक है ना, कि X अगर change कर रहा है तो Y किस हिसाब से change कर रहा है, right? What is the rule that is defining the changes in Y whenever there is a change in X? Now, that rule that you all know, that is called as a function, right? How is a function defined? What is a function? How do you define a function? NCERT books में बहुत अच्छे से define किया हुआ है. How do you define a function? Anybody? नाम लूं या अपने आप बताओगे? What is a function? Don't tell me sets, relations and functions का चैप्टर हमारे को स्कूल में कह दिया था, कोर्स में नहीं है. या पढ़ाया तो था पर एग्जाम में नहीं आएगा. ऐसा कितने स्कूल्स में हुआ था? मैम, function defines unique relation between two variables. It may be x and y. It may be x and y. Now, when you say a unique relation, Yes, ma'am. can we have a relation which is not unique? Ma'am, it's unique in some way, like, ma'am, it should not like it's a specific kind of relation. It is binary relation. Relation. See, the relation itself means it's specific. Why? Because relation is nothing but a rule. No? हाँ बोलो. Ma'am, unique something means there is a rule for rule which make relation a function. Yes, that's what I'm saying. अगर आपने relation बोल दिया तो relation तो rule बन गया और वो rule unique ही रहेगा. You don't have to say that it's a unique relation. You just have to say that a function is nothing but a rule. अब मैं फिर से define कर रही हूँ, crisp definition of a function. A function is nothing but a rule that associates. अब function define करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? Domain और range. Range Yes. या codomain? कोडोमेन. कोडोमेन. अच्छा, चलो अब इस पे मजा लेते हैं थोड़ा. कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है? चलो इतना बता दो, कौन बड़ा है? रेंज बड़ा है या कोडोमेन बड़ा है? कोडोमेन. कोडोमेन बड़ा है. अच्छा, और रेंज में क्या आता है? रेंज में y की वैल्यूज आती है. Set of और images. कोडोमेन में All the values. all the values. All the values. Values of y. में y की स्पेसिफिक वैल्यूज जो x में हो, x से रिलेट हो. It may not relate. रेंज में रिलेट होती हैं. मैम, कोडोमेन में ऐसे भी वैल्यूज हो सकते हैं जो रिलेटेड ना हो डोमेन से. हाँ, कोडोमेन में नहीं हो सकती है. Okay, done. Fine. Good. So basically what is happening is that for every element in the domain X, ठीक है, ये हमारा डोमेन सेट हो गया. ठीक है, इसको हम एक रूल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जो y है. ठीक है ना. तो जब ये रूल हमने डिफाइन कर लिया कि ये रूल कैसे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा सच दैट x गोज टू इट्स स्क्वायर, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया. इन द सेंस अगर मैं अपने डोमेन को सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलूं तो इसमें -1 भी है, +1 भी है, -5 भी है, +5 भी है, सारे रियल नंबर्स आ गए इसमें. ठीक है. लेकिन जब मैंने रूल डिफाइन करा तो अब मेरा यहाँ पे -1 इस रूल के हिसाब से किस पे मैप होगा? +1 पे. और +1 पे मैप होगा. ठीक है ना. -5 कहाँ पे मैप होगा? 25 पे और +5 भी 25 पे. 25. तो अब जो मेरा यहाँ पे बनी, इन सबको हम क्या बोलेंगे? इमेज. इमेज कह सकते हैं ना. इन द
सेंस कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एक तरह का मिरर हो गया जो हमने बीच में रख दिया, राइट? रिमेम्बर, अगर हम किसी ऐसे फन गेम्स में जाते हैं, किसी मेले में जाओ या साइंस म्यूजियम में जाओ, देयर आर मैजिकल मिरर्स, राइट? किसी मिरर में आप एकदम से छोटे दिखते हो, किसी में लंबे दिखते हो, किसी में मोटे दिखते हो, किसी में अजीब से दिखते हो, राइट? सो दे आर लाइक मिरर्स, राइट? दे आर गिविंग यू एन इमेज। कैसी इमेज? जैसी हमने उसको डिफाइन करी। अब यहाँ पे हमने क्या रूल डिफाइन करा कि हमारे डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहाँ पे जाएंगे? अपने अपने स्क्वायर पे, राइट? बट जैसे ही हमने यहाँ किया तो यहाँ पे तो कितने सारे एलिमेंट्स रह गए जिनकी प्री इमेज, अब अगर यहाँ पे इमेज है तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगी? प्री इमेज, ठीक है ना? अब जैसे मैं कहूं यहाँ पे -3, तो ये तो बेचारा अकेला रह गया ना, क्योंकि डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो -3 पे मैप हो सके। किस रूल के हिसाब से? y = x² के हिसाब से। तो जब हमने रूल डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो वो रिलेशन तो यूनिक हो गया। उसको यूनिक शब्द साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। We can just say that a function is a rule that associates every element of the domain to some element of codomain. अब जो एलिमेंट इमेज बन गए +1 +2, तो इसका मतलब जितने हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आए वो सब इसका सबसेट बन गए जो हमारा रेंज बनाएंगे, ठीक है ना? अब ये तो हुई फंक्शंस की बात जो आप सब पढ़ चुके हो, राइट? एंड फंक्शंस किस तरह के होते हैं वो भी सब आप पढ़ चुके हो, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही। वी कैन टॉक ऑफ अ फंक्शन बीइंग 1 1, वी कैन टॉक ऑफ अ फंक्शन बीइंग ऑन टू, all those conditions. I'm not going into those details, right? Then you have also learned, how to talk about the derivatives of function and how to talk about, before derivatives, we talk about the continuity of functions. ठीक है ना? ये सब भी आप कर चुके हो, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी अब दोबारा से बार बार, बिकॉज ये हम मानकर चल रहे हैं कि आपने ये सब चीज क्लास 12th में पढ़ ली है, राइट? नाउ the thing is that once we have a function with us, like we say that, the whole of mathematics is based upon just 4 basic operations. हम क्या करते हैं? We talk of plus, addition, we talk of subtraction, which is the inverse of addition, we talk of multiplication, and we talk of division, which is the inverse of multiplication. तो basically हमारे पास यही 4 चीजें हैं ना जो हम कर सकते हैं। हम पढ़ाई शुरू करते हैं और हमारे को ये सारी चीजें नंबर सिस्टम्स के साथ करनी सिखाई जाती है, राइट? हाउ टू ऐड 2 numbers, how to subtract 2 numbers, how to multiply any 2 numbers, and how to divide any 2 numbers, right? अब याद करो, क्लास कौन सी? फर्स्ट, क्लास 1, जिसमें एडिशन सिखा दिया, राइट? अब सबसे पहले तो टीचर ने सिखा दिया नंबर्स ऐड कैसे करने हैं। अब ऐड कर दिए, एडिशन सीख ली, 2 डिजिट नंबर कैरी ओवर कैसे करना, मतलब वो सब सीख लिया आपने, राइट? द मोमेंट one mathematical concept is taught to you, what is the next step? Remember, go back to your class 1, as I said. सबसे पहले एडिशन सीखा, उसके बाद जब एडिशन की प्रॉब्लम्स कर ली, उसके बाद किस टाइप की प्रॉब्लम्स आई करने को? Word प्रॉब्लम्स, ठीक है? Yes, ma'am. हमने क्या करना शुरू कर दिया उसमें हमने ये कहना शुरू कर दिया, सपोजिंग you have 6 apples, your friend has 4 apples, and you put them in a basket, how many apples are there? इसी तरह से ही करा, ठीक है? फिर धीरे धीरे वो वर्ड प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती गई, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या क्या करने लगे। फिर हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखा, फिर हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आने लग गए, ठीक है ना? Yes, इसी ma'am. तरह की प्रॉब्लम्स आई, राइट? नाउ द मोमेंट वी से वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स you are actually modeling the real life situation. इसी को ही तो mathematical modeling बोलते हैं। Yes, ma'am. Right? We call it as mathematical modeling. Mathematical modeling का मतलब क्या हुआ? आपके पास
एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपने उसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, यही किया हमने, ठीक है। पहले अब रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़े। जैसे अगर मान लो हमारे पास, रिमेंबर दोस प्रॉब्लम्स कि a son is half the age of his father after so many years, the son would be this much years old, how much would be the age of the father and things like that. ऐसी भी प्रॉब्लम्स करी ना हमने, तो उसमें हमने क्या किया, हमने अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम में पहले वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करे। हम कहते हैं ना, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स, जिसको निकालना था उसको एक्स बोल दिया, यही किया। तो हमने क्या करा, हमने अपने वेरिएबल्स डिफाइन करे, फिर जो सिचुएशन थी उसके बेसिस पे हमने अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिफाइन करी, किसकी टर्म्स में, वेरिएबल्स की टर्म्स में। फिर हमने उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसकी हेल्प से, जो जो मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास अवेलेबल थे। और वो टूल्स क्या थे, इन चारों ऑपरेशन के अलावा तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। या हमने ऐड करा, या सब्ट्रैक्ट करा, या मल्टीप्लाई करा, या डिवाइड करा, इससे अलावा तो कुछ भी नहीं किया, राइट। फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया इसको सॉल्व करके, उस सोल्यूशन को वापस हमने रियल लाइफ सिचुएशन में ट्रांसलेट किया। रिमेंबर, नंबर कटता था ना अगर आंसर नहीं लिखा हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is because you are required to translate your mathematical solution into the real life problem that was given to you. Okay, so this is what mathematical modeling is all about, and this is what we are going to learn here. कैसे, अब ये चीज आपने नंबर्स के साथ करी, ठीक है। यही चीज आपने जब क्लास बड़ी हुई, आप क्लास 11 में आए, क्लास 10 में आए, आपने मैट्रिसेस सीखा, आपने वेक्टर्स सीखे, आपने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा, आपने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, आपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। और जब हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा तब हमने रियलाइज किया कि ओहो, हमारा आंसर तो स्केलर भी हो सकता है, हमारा आंसर वेक्टर भी हो सकता है। तो इसलिए फिर हमने वेक्टर्स में क्या कर दिया, दो तरह की मल्टीप्लिकेशंस ले आए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर यही चीज जब हमने मैट्रिसेस पढ़े तो यही चीज हमने मैट्रिसेस पे भी करना सीखा, राइट। पर जब हमने मैट्रिसेस को सब मल्टीप्लाई करना सीखा तो हमने बोला ओहो, हम तो दो तरह के एक ही किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमारे को दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, वो हमने आइडेंटिफाई करी। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पर डिपेंडेंट थी वो। Am I right? So basically Yes, what ma'am. I am trying to say is that as you grow on, as you move on with your subject, you are actually learning these four operations on that concept. इसी तरह से जब आपने फंक्शंस पढ़े तो आपने फंक्शंस को ऐड करना सीखा, आपने फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना सीखा ना हमने। फिर जब हमने मल्टीप्लिकेशन की बात आई तो हमने दोनों चीजें सीखी। इफ यू गो बैक टू योर क्लास 12, you have learned two things, f into g and fog. दोनों में डिफरेंस है ना। f into g of x was nothing but fx into gx, but fog of x was f of gx, GX. ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या, f ने अपना काम करा, g ने अपना काम करा, और जो रिजल्ट आया हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहले जी ने अपना काम करा, क्योंकि दोनों फंक्शंस हैं तो इसका मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक रूल है, ठीक है। तो पहले हमने जी वाला रूल लगाया, फिर जो भी आंसर आया उस पे हमने एफ वाला रूल लगाया, तो ये एफ ओ जी बन गया, राइट। फिर इसी तरह से हमने एफ ऑफ जी, एफ बाय जी डिफाइन करा, बट ये तभी डिफाइन पॉसिबल था व्हेन जी इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज डिविजन बाय 0 इज स्टिल नॉट डिफाइंड. So we have to assume that the denominator never vanishes. Then only we can talk of division of two functions, right? तो ये सब जब आपने पढ़ लिया
तो ये तो कहलाता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, क्योंकि जो आपने ऑपरेशंस लगाए ये सब हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस। उसके बाद आपने क्या करा कि फंक्शंस आगे बढ़ना शुरू करा, पढ़ा आगे, उनका ग्राफिंग सीखा, उनकी कंटिन्यूटी सीखी, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी सीखी। ठीक है, अब अपनी अपनी कॉपी पे, ठीक है, मैं ये ग्राफ प्लॉट कर रही हूं। एफ प्लॉट करो खुद, ये तुम्हें आते हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं ये। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जनरल, कोई डोमेन कोई रेंज नहीं कर रही, सिंपल दो लाइनें एक्स वाई एक्सेस बनाओ और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लॉट करो। ठीक है, फिर देखेंगे कैसे ग्राफ बन रहे हैं। हाँ जी, बन गए। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या शेप बनी? वी लेटर बनेगा। वी शेप बनेगा, है ना, वी शेप बना। तो अब मैं बना रही हूँ ये मेरे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, मैंने कहा ना रैंडम, मैं प्रॉपरली नहीं कर रही, सिर्फ समझाने के लिए है ये, तो इसलिए मैं कुछ लेबल भी नहीं कर रही और कुछ नहीं कर रही। ये बन गया मॉड एक्स। ठीक है, ये हमारा है ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स या वाई इक्वल टू मॉड एक्स, कुछ भी कह लो। और साइन एक्स, तो ये तो बहुत ही प्यारा ग्राफ है, ये तो नींद में भी कोई पूछे तो हम बना सकते हैं, है ना, राइट। व्हाट अबाउट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर? पैराबोला कैसा? 0 पे वर्टेक्स। नहीं, मतलब पैराबोला मतलब यू, ये जैसे इसको तुमने वी बोला तो ये Yes, ma'am. यू बन गया ना। अब यू कैसा? सीधा खड़ा यू, उल्टा लेटा यू, टेढ़ा लेटा, लेफ्ट लेटा या राइट? अपवर्ड मैम, अपवर्ड opening. माउथ होगा इसका मैम, इसका upward opening. अपवर्ड ओपन माउथ होगा इसका। ऐसा, समथिंग लाइक दिस, Yes, ma'am. यस Yes, यस ma'am. मैम। राइट। ये हमारा बन गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस वॉज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब ये हमें कैसे पता लगा कि मॉड एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स, अब इसको वर्टेक्स बोलेंगे ना, एक पॉइंटेड एज आ गए, पॉइंटेड वर्टेक्स आ गया यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे तो पॉइंटेड बनाना था और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे एकदम से स्मूथ बनाना था। मतलब हमने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के लिए इतना स्मूथ क्यों बनाया? हम ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसा क्यों नहीं बनाया? ये कैसे मैम पता वो लगा? फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी Continuity, चेक करने पे पता लगता है। कंटिन्यूअस तो तीनों फंक्शंस हैं। वो वैल्यूज पुट मैम करके डिफरेंशिएट नहीं मैम होता ना वो उस पर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल Corner नहीं होगा वो point. फंक्शन। एक मिनट, मेरे को सबका दिखने दो कौन क्या बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम डिफरेंशिएट क्या नहीं बोल रहे होगा थे? तो वो मैम वो हाँ, कॉर्नर एक पॉइंट guy saying आएगा। कि वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। हाँ जी, और कौन बोलने की कोशिश कर रहा था? आई थिंक इट वाज आयुषी। हाँ, मैम वर्टेक्स पॉइंट जो होता है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मॉड एक्स जो है, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मॉड एक्स जो है वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये नहीं कहना है। चाह रहे हो ना? हाँ, ठीक है। और एनीथिंग एल्स यस मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस? ठीक बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाउ दैट मीन्स, और मैम फंक्शन के हाँ बोलो 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 बोल। और मैम फंक्शन के डोमेन चेक करने के बेसिस पर भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। नहीं, वो तो है ही, अभी तो वही मैंने बोला कि अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं छोड़ रही हूँ वो सारा पार्ट, मैं सिर्फ क्योंकि मुझे शेप में इंटरेस्ट था इसीलिए मैं सिर्फ शेप पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। ठीक है मैम, हाँ जी, मैम ये जो मॉड एक्स वाला फंक्शन है मैम, हम्म, इसका
इसका डोमेन और इसका रेंज मैम उसकी वजह से इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, क्योंकि मैम उस रूल की वजह से इसका एकदम मैम अपवर्ड जा रहा है वी शेप में। वो तो एक्स स्क्वायर और का भी जा रहा है, इसमें डोमेन और रेंज तो मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर का सेम है बिल्कुल। तो मैम इसकी वैल्यूज अलग अलग बन रही है ना, बट इस वजह वो से तो बेटा वो ये यू डिफरेंस तो शेप नैरो और ब्रॉड में आ जाएगा ना, बस रहेगा तो एक्स, दोनों के ग्राफ रहेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, चाहे वो एक्स स्क्वायर है चाहे मॉड एक्स है। यस मैम, फिर आप पूछ क्या रही हैं? मैं तो ये पूछ रही थी कि जब जीरो पे सिर्फ ओरिजिन पे देखो, हमें ये कैसे पता लगेगा कि मॉड एक्स जो है वो वी की शेप लेगा और एक्स स्क्वायर जो है वो यू की शेप लेगा, ये पूछ रही थी मैं। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? मैम फिर हाँ बोलो। वो जीरो के पास जो मैम जो जीरो के पास ऑल जो पॉइंट्स है मैम, समझ लीजिए -1 से 1 तक के इंटरवल में ये यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सभी पॉइंट्स, उसकी कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूअस तो मॉड एक्स भी है, कंटिन्यूटी तो उसकी भी है। है ना? तो फिर the answer was right, which the others have given, that it is the differentiability. Mod x is not differentiable at x equal to 0. And because it is not differentiable, therefore it is not smooth at x equal to 0. See, why I am insisting on these points is because in our course now, we would be learning basic objective of this chapter, or the topic that we are doing right now, is that we have to learn how to draw the graphs of functions just with the help of the knowledge of derivatives. That's all. Okay, so your objective is to learn the graphing or sketching. That is my objective. So to come to that, what I wanted to know was the difference between mod x and x squared, right? Now, as you said that mod x is not differentiable. Okay, not differentiable means the derivative does not exist at x equal to 0. Whereas for x squared, the derivative exists. So one thing is very clear to me, that the concept of derivative can be related to the smoothness of the curves. Am I right? अगर तो देखो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का डिफरेंस क्या हुआ? कंटिन्यूटी का मतलब कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं और मुझे अपना पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे जिस भी इंटरवल में कर रही हूं मैं, राइट? लेट अस अज्यूम कि अभी हम रियल लाइन पे ही काम कर रहे हैं सारा, राइट? सो इमेजिन साइन एक्स, आप -∞ से ड्रॉ करना शुरू करो साइन की वेव, you can continue till +∞ without lifting your pen, right? That is because the function is continuous throughout. Am I right or not? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So as far as continuity is concerned, it tells me whether there is a break in the graph or not, right? Similarly, as far as differentiability or derivative is concerned, it will give me the knowledge whether my curve is smooth at that point or not. So that is where the concept of derivatives come into existence, right? अब याद करो,
वो जब डेरिवेटिव्स पढ़े थे, ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव कैसे निकालना शुरू किया था? फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था, क्या फॉर्मूला लगाया था? एफ ऑफ क्या था? माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इस तरह से किया था क्या, कोई और तरीका किया था? यस मैम, इसी तरीके का था। लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, यही था? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी और ने किसी और तरीके से करा तो बताओ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सपोजिंग ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और ये रहा मेरा फंक्शन कोई भी, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आर्बिट्ररी कोई पॉइंट लिया, ये मेरा x हो गया रैंडम, और अकॉर्डिंगली ये मेरा fx हो गया ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्मूथनेस है या नहीं, हम पूरे डोमेन पे देखने की बजाय हम इसके आसपास, यही करते हो ना, हमने एक इनफाइनाइट डेसिमल लिया y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पहले तो यहीं से ही शुरू किया था ना, और फिर उसको इसमें कन्वर्ट किया था। इफ यू गो बैक टू योर क्लास 12, राइट, बेसिकली डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या थे, स्मॉल चेंजेस। किस में? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी और हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में भी। अगर हम x में थोड़ा सा, अब स्मॉल स्मॉल तो बहुत एम्बिगुअस टर्म हो गया, किसी के लिए कुछ स्मॉल हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज भी स्मॉल हो सकती है, किसी के लिए छोटी से छोटी चीज भी स्मॉल हो सकती है, स्मॉल नहीं हो सकती, मतलब उससे भी छोटा उसको चाहिए। तो इसलिए उस एम्बिग्विटी को हमने छोटा कैसे डिफाइन करा, इतना छोटा कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो हो नहीं रहा बट ऑलमोस्ट जीरो, राइट। तो हमने x में चेंजेस स्टडी करे कि अगर हम x को थोड़ा सा चेंज करते हैं इधर उधर प्लस माइनस, तो हमारे y में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। अगर तो ये चेंजेस, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं करती तो नहीं है। इसीलिए इसमें हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव हर चीज को इंट्रोड्यूस करा। मतलब अगर हम चेंज राइट की तरफ स्टडी करें, चाहे हम चेंज लेफ्ट की तरफ स्टडी करें, अगर एग्जिस्ट कर रही है ये लिमिट तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। तो बेसिकली इसने हमें क्या बताया कि हमारा फंक्शन स्मूथ है या नहीं है, मतलब अगर वो मुड़ेगा तो वो इस तरह से मुड़ेगा या इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। नॉट जस्ट दिस, सी द पॉइंट इज डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर गया, डेरिवेटिव ने हमें बता भी दिया, बट ये तो फिर भी दो तरह के कर्व थे, राइट। मेरे पास कर्व्स, एक तो ये हो गया फंक्शन ऐसे भी बिहेव कर सकता है, फंक्शन ऐसे भी बिहेव कर सकता है, फंक्शन ऐसे भी बिहेव कर सकता है, ये। तो अब अगर मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि किसी एक पॉइंट पे ये फंक्शन ऐसे ड्रॉ होना चाहिए या ऐसे ड्रॉ होना चाहिए या ऐसे ड्रॉ होना चाहिए, राइट। सो to learn this sketching part of function, how the shape is going to take on for a given function, we need the concepts of derivatives. That's all. If you know the derivatives of functions, we can easily sketch. अभी तक हम नहीं कर सकते थे। अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या करा, हमने जैसे अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें या और किसी तरह की फंक्शंस की बात करें, अभी तक हम स्केच कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ फंक्शन दिया, तो जैसे आप बोल रहे हो, राइट, मैंने आपको कोई फंक्शन दिया, जैसे सपोजिंग जैसे ग्राफ ही प्लॉट करते हो, तो आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो, ठीक है ना, इसी तरह का, राइट। आप x को वैल्यूज देते हो, y को वैल्यूज, तो या जैसे फिजिक्स में भी अगर आप से करंट और वोल्टेज में या किसी में टेम्परेचर में किसी में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप क्या करते हो, आपके पास एक रिलेशन है,
जो वो रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं दोनों वेरिएबल्स, राइट? सो व्हाट डू? You give the values to one of them, you find the values with the help of the relation, then you plot the points, and then you join them by a freehand curve. यही करते हैं, right? But what if my curve is too complicated? If my relationship is very, very complicated, I have a cubic polynomial, I have a fifth degree polynomial that I have to plot. I have to plot a function like, ये तो फिर भी simple है, x log x, फिर भी कर लोगे. No, I can have a function like where I have to plot fx equal to x plus 1 by x, right? So as and on, when my functions become complicated and I just have to sketch them, right? What if my function is fx equal to x to the power 2 by 3? I have to plot it. I have to sketch it. Not plot it, I have to sketch it. Okay. Then what do we do? Okay. So as our functions become complicated, we must know how the shape of the function is going to take on, how the function is going to behave in the whole real line or in the domain of its definition where it is defined. Like, for example, this function is not going to be defined when x is 0, right? So this function is not going to be defined when x is negative. So we have their domains, where they are going to be defined. So wherever they are defined or wherever their graphs exist, we must know how they can be sketched or how they can be plotted. Okay, so this is what we are going to learn in this chapter right now. Before we move on how to actually sketch, let's see what all we need. Now, as I said, we just need the knowledge of what we are calling as the derivatives. अब derivatives में अगर कोई फंक्शन दिया है तो मैं f dash x निकाल सकती हूँ, which is the first order derivative. And we have seen कि अगर हम एक बारी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो दोबारा कोई फंक्शन ही बनता है, ठीक है ना? और हमने ये भी देखा है कि अगर एक बारी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोबारा कोई फंक्शन आता है तो हम उसको दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसका जो वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है ना? ये सब हमने देखा है, राइट? So that means if I talk of derivatives, I can talk of first order derivative, I can talk of second order derivative, and I can talk of higher order derivatives also, right? But as far as the sketching is concerned, it's only the first and the second order derivatives that will help us to sketch the curve. This is all that we need, right? Now, before we move over to the proper procedure of sketching the given curves, let me come to one concept which you all are familiar with. I want an answer now. After studying, I think, continuity, differentiability, and everything, you must have studied the concept of increasing or decreasing functions. पढ़ा था? Yes, ma'am. देखो, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया तुम्हें. ये सब वो चीजें हैं जो तुमको Yes, पहले ma'am. से आती हैं, ठीक है? हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, right? Now, how do you define an increasing function? अब कोई और आंसर दो. इनकी आवाजें सुन सुन के मैं थक गई. एकता, महिमा, आयुषी, ये सभी बोली जा रहे हैं. आप कोई और भी बोलो. Ma'am, when x1 is greater than x2 and f of x1 is greater than f of x2, then the function is said to be increasing. Then the function is said to be an increasing function. Increasing. Very good, very good. Because this is one thing that we want. See, why I was asking this is because most of the times the answer that comes is if f dash x is more than 0, then the function is increasing. That is not the definition. That is a property of an increasing function. Okay, so when somebody asks you to define an increasing function, this is the definition that you should be giving. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब I can say that x1 more than x2 implies
f of x1 is more than f of x2, यही बोल रहे हो ना आप? Then the function Yes, ma'am. is said to be an increasing function. Increase. हाँ, इसको उल्टा बोल दो या जैसे मर्जी बोल दो, इसका बेसिकली क्रूडली और समझने के लिए, अब क्या है, x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, fx क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? इसको हमने कैसे समझा कि जैसे जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है, दोनों। इसका मतलब बेसिकली यही हो गया ना, ये मेरा x है और ये मेरा fx है। तो अगर x इस डायरेक्शन में जा रहा है, fx भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों एक ही साइन से रिलेटेड है, तो हमारा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f of x1 इज लेस देन f of x2, तो भी ठीक है, राइट? दोनों में साइन सेम होना चाहिए, राइट? अगर दोनों का साइन उल्टा हो गया, मतलब x1 more than x2 implies f of x1 is less than f of x2, ठीक है? मतलब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो बढ़ा, अब इसमें ये हो गया, ये हमारा x था, ये हमारा fx था, मतलब x तो इस डायरेक्शन में गया बट fx इस डायरेक्शन में आया, ठीक है? तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, fx बढ़ रहा है, तो मतलब हम इसी तरह चलते जा रहे हैं, क्योंकि x भी बढ़ रहा है और fx भी बढ़ रहा है, ठीक है? अगर x की बड़ी वैल्यू है तो fx की भी बड़ी वैल्यू है उससे पहले वाले से। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, कि इसमें हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x तो इधर जा रहा है लेकिन fx की वैल्यू घटती जा रही है, तो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग मोड में आ गया, इधर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है, ठीक है? तो अगर तो दोनों के साइन सेम डायरेक्शन में है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट? ये तो हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी शुड नो दिस, बिकॉज व्हेन वी आर स्केचिंग, अब मैंने तो एक ग्राफ दे दिया, ठीक है? अब हमें क्या, मैंने इक्वेशन दे दी, ग्राफ क्या दे दिया, मतलब मैंने एक इक्वेशन दे दी कि इसको प्लॉट करो। अब मुझे क्या पता कि मुझे ऐसे जाना है, मुझे क्या पता कि मुझे ऐसे आना है, राइट? तो इसीलिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है? अब कैसे पता लगाते हो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? जैसे मैंने अभी बोला, मैम डेरिवेटिव निकाल के। डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है ना, ठीक है? अब उसमें हम क्या बोलते हैं कि इफ f dash x is more than 0, that means the function is increasing. यही बोलते हो ना? And if f dash x is less than 0, that means the function is decreasing. यही बोलते हैं हम। अब ये तो हुआ हमारा टेस्ट। क्यों? इसका भी रीजन है एक, वी हैव अ थ्योरम फॉर दिस दैट गवर्न्स दिस, अभी आगे बताती हूँ क्यों आता है ऐसे। बट बिफोर वी मूव ऑन, अब हमने ये बोला कि f ऑफ, चलो हम ये बोलते हैं कि इफ x2 मोर देन x1, क्योंकि हम सपोजिंग मेरा इंटरवल है a b, ठीक है, और इसमें मैंने पॉइंट्स इस तरह से कर दिए a, x1, x2 सो ऑन xn b, रैंडम पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है? तो इसका मतलब मेरा x2 जो है वो x1 से बड़ा है, क्योंकि मैंने उसको x1 के बाद लिखा, ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग दैट माय b इज ग्रेटर देन a, ठीक है? तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो अगर मेरा x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब x2 x1 से बड़ा है, बट मेरा f ऑफ x2 f ऑफ x1 के से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी तो हो सकता है, Yes, ma'am. Yes. ठीक है ना? I can have more than or equal to, I can even have less than or equal to, right? So even if we have equality, we still call it as increasing or decreasing. But if we remove the equality,
then we call it as Strictly decreasing ठीक है ना, यही करते हैं ना, strictly increasing or strictly decreasing, ठीक है ना. Now, in fact, you know, we have another term where we call the function to be a monotonic function if the function is either monotonically increasing or monotonically decreasing. डिक्रीजिंग. मैम मोनोटोनिक फंक्शन वही ना जिसमें एक ही टाइप होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. Either increasing or decreasing, yes. Of Yes, course, ma'am. एक फंक्शन नहीं ऐसा नहीं हो सकता. देखो मतलब होता क्या है, अब जैसे sin x लो, right? Say supposing I take the curve y equal to sin x and let my interval be 0 to pi. ठीक है, सिर्फ यही इंटरवल है 0 to pi. तो अब क्या बनेगा, ये क्या कहोगे इसको? Function is neither increasing nor decreasing. नो, ऐसे नहीं कह सकते. अच्छा, वो तो 0 to 2 pi में होगा. नहीं, क्यों नहीं, क्यों? देखो फंक्शन, देखो हो क्या रहा है, 0 to pi में मतलब मेरे पास सिर्फ यही आया ना. मैम तो वो शायद 0 to 2 pi में कहलाएगा. नहीं, देखो ये हुआ, ये 1 कहाँ पे पहुंचा, ये पॉइंट तो 1 हुआ ना, ये पहुंचा π/2 पे और ये पहुंचा पाई पे. ठीक है, अब हुआ क्या कि ये फंक्शन 0 to π/2 तक तो इंक्रीज किया, क्योंकि जैसे जैसे मेरा x बढ़ा, देखो मैं यहाँ ये है, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में जब x बढ़ा तो मेरा fx भी तो इस डायरेक्शन में गया. लेकिन π/2 to pi में क्या हुआ कि x तो मेरा इस डायरेक्शन में बढ़ा, लेकिन मेरा fx उल्टी डायरेक्शन में आ गया. तो हुआ क्या कि 0 to π/2 में तो इंक्रीज करा, बट π/2 to pi में डिक्रीज कर गया. इसको यही बोलेंगे ना, ऊपर बढ़ा तो इंक्रीज, नीचे घटा तो डिक्रीज. अब 0 to pi में वो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो मतलब शैतानी कर रहा है ना, एक जैसा बिहेवियर नहीं है. इसीलिए फंक्शन मोनोटॉनिक नहीं है 0 to pi में. मोनोटॉनिक वो तब कहलाएगा व्हेन इट इज ईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द होल इंटरवल ऑफ डोमेन. मतलब अगर मैं अपना इंटरवल 0 to π/2 ले लूं तो फंक्शन इंक्रीजिंग है. इसी तरह से अगर मैं अपना इंटरवल π/2 to pi ले लूं तो भी फंक्शन मोनोटॉनिक है, क्योंकि वो डिक्रीजिंग है, सिर्फ डिक्रीजिंग है, अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा. Are you getting the point now? मोनोटॉनिक का मतलब पूरे इंटरवल में या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे. अगर कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कर रहा है तो वो मोनोटॉनिक नहीं कहलाएगा. तो वो बिहेवियर है, इट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, राइट? सो मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब ही यही हुआ व्हेन द फंक्शन इज either strictly increasing or Yes, ma'am. strictly decreasing in the whole interval I. Are you getting the difference now? Yes, ma'am. Okay. Yes, So this ma'am. is how we define the function. अब जैसे मान लो, देखो fx equal to x cube का ग्राफ बनाया है, आता है बनाना? Yes, ma'am. fx equal to x cube कैसा बनता है? अगर कॉपी में ड्रॉ करा है तो अपना वीडियो ऑन करके Upward, कॉपी दिखा सकते हो. I would love to see that. first quadrant में मैम upward and third quadrant में downward sloping. Now, fx equal to x cube, your domain is minus infinity to infinity. तो ड्रॉ कहां से करना शुरू करोगे? हम ड्रॉ प्लस इन्फिनिटी से करना स्टार्ट करेंगे, जो कि y एक्सिस की तरफ से होगा अपवर्ड्स में. तो वो माइनस इन्फिनिटी हुआ ना, थर्ड क्वाड्रेंट से ड्रॉ करना शुरू करोगे ना.
यस मैम, Yes, सॉरी, ma'am. थर्ड क्वाड्रेंट से शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी थर्ड से। क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको फर्स्ट लेके आओगे. क्वाड्रेंट मैम. हाँ. यस मैम. यस मैम। अच्छा, नेहा इज शोइंग हर स्क्रीन. हुई नहीं शायद. या दिखा नहीं नेहा बेटा आपका. शेयर नहीं हो रही स्क्रीन. हाँ, कुछ दिक्कत आ रही है. चलो कोई बात नहीं. शायद मेरी शेयर एक बारी में एक ही स्क्रीन शेयर हो सकती है, तो मेरे को हटाना पड़ेगा पहले. कोई बात नहीं. मैम अपने बैक कैमरे से दिखा दो. हाँ बैक कैमरे से. हाँ, जैसे मर्जी दिखाओ. आई वुड लव टू सी दैट. Something like अदरवाइज this. आई हैव टू. नहीं, मुझे लग रहा है शायद मुझे अपना प्रेजेंटिंग ऑफ करना है. yes, almost like this. Yes, that is what your x cube is. That's okay. So basically, why I was interested in x cube is because, see, the graph is going to be, I'm sorry, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा ना. ठीक है ना. अब हमने क्या करा, ये फंक्शन चाहे अब x क्या है, माइनस इन्फिनिटी इधर ले लो, प्लस इन्फिनिटी इधर ले लो, तो इसका मतलब पूरी रियल लाइन में हमारा ग्राफ तो हमेशा बड़ा. ठीक है ना. जैसे जैसे x बड़ा, मेरा fx भी बढ़ता ही जा रहा है. राइट. सो इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन. राइट. अब चाहे इसको आप 0 टू इन्फिनिटी ले लो, छोड़ दो अपना इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ले लो. सॉरी, infinity should be an open interval now. So this is how the graph is going to behave like that, right? So it's unlike sin x. Sin x is not a monotonic function in the interval 0 to pi or 0 to 2 pi, but specifically in the interval 0 to pi by 2, it is monotonic. In the interval pi by 2 to pi, it is monotonic, right? So this is the basic difference between, the monotonic function and the increasing and the decreasing function. Now, see, you all have studied what we call as, जिसको बोला था तुमने क्या, Lagrange's mean value theorem. पढ़ी है ना सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं बीच की कंडीशंस एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रही. अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है continuous in the closed interval, differentiable in the open interval. Then what do you say? There exists a point C such that what happens? F of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 is equal to f dash C. यही होती है ना? Yes, ma'am. Lagrange's mean Screen value. is not visible. Yes, ma'am. Screen is not visible. Is that so? एक मिनट, वो मुझे लगता है अच्छा, हाँ ठीक है. बीच में मेरी ना हट गई थी. अब विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is what was Lagrange's mean value theorem about. यही था ना? f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 is equal to f dash c. तो इसमें हम Yes, ये ma'am. assume कर रहे हैं कि my x1 is less than x2. मतलब हमारी नंबर लाइन पे x1 पहले आया और x2 बाद में आया. यही मतलब हुआ इसका. ठीक है ना? और हमारा f of x है. अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम क्या कर रहे हैं कि x1 लेस देन x2 मस्ट इंप्लाई f of x1 इज ऑल्सो लेस देन f of x2. तभी तो फंक्शन इंक्रीजिंग है. यस मैम. Yes, ma'am. और उल्टा भी, मतलब दोनों का साइन हमें सेम चाहिए. मतलब x1 मोर देन x2 मस्ट इंप्लाई f of x1 इज मोर देन f of x2. ठीक है. So the moment I have this,
that means this term, if x1 is less than x2, मतलब the denominator is positive. ठीक है? f of x1 is less than f of x2, मतलब the numerator is also positive. So this would imply what? That f dash c is positive. And where does the c lie? According to Lagrange's mean value theorem, this c belongs to the open interval x1 x2. यही है ना? Yes, ma'am. भी कह लो, x1 x2 कह लो, कुछ भी कह लो. ठीक है? इसी तरह से if x1 is more than x2, that means your denominator is negative. And f of x1 more than x2 will also imply that the numerator is also negative. But numerator negative, denominator negative, what will happen to f dash c? This will still F dash c is greater than 0. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? The condition that the function is increasing implies that the derivative is positive. कहाँ पे? उस interval, उस point पे जो एक neighborhood में lie करता है, x1 x2 के बीच में कहीं lie करता है. ठीक है? वहां पे हमारा derivative positive है. राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमारी एक कंडीशन हो गई ना, कि अगर हमको वेरीफाई करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो हम सिर्फ उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है. जहां जहां वो पॉजिटिव है, इसका मतलब उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, और जहां नेगेटिव है उस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है. ठीक है? अब अगर यही फंक्शन डिक्रीजिंग होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका और इसका साइन रिवर्स हो जाएगा. मतलब x1 less than x2 must imply f of x1 is more than f of x2. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया, बट न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया. तो इसलिए हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया. तो वो कब होएगा? जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. राइट? So that is how, in fact, this result is called as the monotone convergence theorem. You don't have to prove it, but you can go through the statement. This is your theorem number 4.7 in your books. So you can just go through the statement of this theorem, and this is the logic of the proof that has been given. So you don't have to prove it. You don't have to write the proof anywhere, but you just have to understand कि हमारे पास कहाँ से आया ये. ठीक है? अब देखो, जो ये बात आई हमारे पास, अगर हम वापस से sin x पे आ जाते हैं और अपना इंटरवल वही रखते हैं 0 to pi, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बन रहा है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना? चलो इसको ऐसे ही कर लेती हूँ. अब हो क्या रहा है कि 0 to pi के बीच में pi/2 एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है? कि अगर मैं देखूं कि जब मेरा फंक्शन 0 से pi/2 तक जा रहा है, तो उसका एक बिहेवियर है कि वो इंक्रीज करता जा रहा है. बट ऑल ऑफ अ सडन pi/2 पे पहुंच के उस फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया. ठीक है? अब देखा जाए तो ये जो हमने कहा था, अगर हम 2 पॉइंट्स लें, एनी 2 रैंडम पॉइंट्स a b या x1 x2 कह लो, कुछ भी कह लो उसको, तो ये जो चीज है f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1, ये क्या कहलाता है? Can anybody say? इस टर्म को क्या कहते हैं for that function? स्लोप. स्लोप किसका? फंक्शन का. नहीं, कोई और? मैम सेकंड का. Slope of x. स्लोप ऑफ सेकंड. किसका? स्लोप ऑफ सेकंड. सीकेंट कहां से बीच में आ गया? सीकेंट तो हमारे लिए यूजलेस है, नॉट इंटरेस्टेड. मैम स्लोप उस पॉइंट का जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है. जहां पे वो डिफरेंशिएबल है. तो अगर फंक्शन कहीं पे डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफिकली, अच्छा तुम सीकेंट को उस हिसाब से कन्वर्ट कोरिलेट कर रहे थे अनन्या. आई गॉट योर पॉइंट नाउ.
टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस। अगर एक फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब हुआ? मैम टेंजेंट। टेंजेंट क्या? टेंजेंट हम ग्राफ के थ्रू जो पास होगा टेंजेंट टच करेगा ना मैम ग्राफ को, कर्व को। इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलेंगे कि अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन का उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। और टेंजेंट क्या होता है जो अभी अनन्या ने बोला? स्लोप। स्लोप, लिमिटिंग सीकेंट। भाई देखो ना, इसको ऐसे नहीं याद रखते कि मेरे पास, एक मिनट, लेट मी मूव डाउन। क्या हो रहा है ये? जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, एनी कर्व y इक्वल टू fx। ये तो कहलाएगी उसकी सीकेंट, है ना। इसको मैं कह लूं चलो डिक्रीजिंग ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, x1 x2 और ये इसकी टेंजेंट हो गई। यही कहना चाह रहे थे ना तुम उस समय, ठीक है ना। तो अब ये fx2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये एक्चुअली ठीक कहा था तुमने उस समय, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन जॉइनिंग x1 एंड x2। अब अगर मैं इसमें एक लिमिट लगा दूं कि लिमिट x2 अप्रोचिंग x1, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पॉइंट को इस x2 को x1 के पास लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे x एक्सिस और y एक्सिस पे ये रहा x2 और ये रहा x1, तो इसका मतलब हमें इस x2 को x1 के पास लाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रहा मेरा f ऑफ x1 और ये रहा मेरा f ऑफ x2, तो ये भी तो एक दूसरे के पास मूव शुरू करेंगे और अल्टीमेटली कहां पे जाके मिलेंगे? सम पॉइंट C, ठीक है। और ये हो गई हमारी टेंजेंट, तभी तो इसको हमने इक्वल टू f डैश C कहते हैं। सो अ टेंजेंट इज नथिंग बट अ लिमिटिंग सीकेंट, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम टेंजेंट की बात करें या इस तरह की बात करें, दैट इज व्हाई दिस डिफाइंस व्हाट वी कॉल एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द कर्व, हाउ द कर्व इज गोइंग टू बिहेव, ठीक है ना। तो अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसी तरह से आता है ना। तो जब हम fx इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि एक जगह पे वो इंक्रीज कर रहा है, एक जगह पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब एक इंटरवल में तो हमारे पास जो टेंजेंट्स हैं या जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, और पाई बाय 2 पे के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब 0 टू पाई बाय 2 तक तो मेरा f डैश c पॉजिटिव था फॉर एवरी c इन बिटवीन, एंड फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई मेरा f डैश c डिक्रीजिंग हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना। तो अगर कहीं मोर देन 0 था और फिर कहीं लेस देन 0 हो गया, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं f डैश c 0 भी तो हुआ। Are you getting the point? अगर भले ही वो चाहे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा हो, डेफिनेटली कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारा डेरिवेटिव वैनिश करेगा, और यही रोल्स थ्योरम है, that there exists at least one point C where f dash C is 0 when f of A and f of B are of opposite signs,
यही बोला था ना हमने रोल्स थ्योरम में। तो अब अगर ऑपोजिट साइंस हैं तो अब यहाँ पे हम एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ना की बात ना करके हम सिर्फ डेरिवेटिव्स के साइन से ही ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मेरे डेरिवेटिव्स एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ घटते जा रहे हैं, या एक तरफ घटते जा रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बीच में एक ना एक पॉइंट है जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 होगा, राइट। सो ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे हमारे डेरिवेटिव्स वैनिश करेंगे, ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए बिकॉज दे आर द क्रिटिकल पॉइंट्स that will help us define the shape of the curve, and that is why we call such points as the critical points. I don't know whether you have called it as critical points. I think you have studied them as extreme points also. Books में क्या लिखा था? I don't remember. तुमने class 12 में क्या पढ़ा? But then they are also called as the extreme points or critical points. ठीक है, अब इसको मैं extreme points नहीं बोलूंगी, we'll call them as critical points only because that's what this book also calls it every time, right? So basically your critical points are what points? Your critical points are all those values of x for which किसी ने कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना? हाँ। ओके मैम। See, whenever there is a strict inequality, that means it is strictly increasing. Okay? मैम मतलब अगर वो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा? नहीं, see, f dash x, see, function f dash x more than 0 का मतलब है function is strictly increasing, f is strictly increasing. Okay, अब f dash x equal to 0 का मतलब क्या हुआ कि वहां पे तो slope parallel to x axis हो गया। यस मैम। तो इसका मतलब उसके बाद से वहां एक ऐसा पॉइंट हमें मिल गया कि जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। यस मैम। डेफिनेटली या तो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, बट बिहेवियर चेंज होगा उसका। और क्योंकि देखो अब होता क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो इसका मतलब या तो हमारा फंक्शन इस तरह से बनेगा या हमारा फंक्शन इस तरह से बनेगा। यस मैम। इस केस में भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस केस में भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। हाँ। और ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? जहां पे डेरिवेटिव अच्छा खासा पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव होना शुरू हुआ, और यहाँ कैसा है? जहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव होना शुरू हुआ। फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, फंक्शन इस केस में डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ कि फंक्शन ने अपना नेचर बदला। फंक्शन का नेचर हमने कैसे जज करा? डेरिवेटिव के साइन से। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये सीखना है कि हम फंक्शन के ग्राफ को कैसे स्केच करें, कैसे प्लॉट करें। ठीक है, उसके लिए हमें पहले ये जानना भी तो जरूरी है ना कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर बारी बारी से हो रहे हैं तो क्या कहीं ऐसा पॉइंट भी है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है। क्योंकि अगर फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है तो फिर तो वो तो बढ़ता ही जाएगा ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है मेरा एफ एक्स भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग आ रहा है तो मतलब ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अब ऊपर जाके नीचे ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे जाके ऊपर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा। तो ये तो बहुत सारी शेप्स हो सकती है ना, ये चिड़िया भी बन सकती है, ये यू भी बन सकता है, ये वी भी बन सकता है। तीनों में बिहेवियर वही है। फंक्शन पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हुआ, पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हुआ, पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हुआ। बिहेवियर तो तीनों में सेम है। बट अगर ये 0 ना हो तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा?
अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली रहेगा। हाँ, ओके मैम। अगर डेरिवेटिव इफ एफ डैश इज पॉजिटिव थ्रू आउट तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है थ्रू आउट। ओके मैम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्या बनी? ग्राफ है ना वो भी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यस मैम, इक्वल है। ठीक है ना। तो अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन है। यस मैम। कैसी? ये रही। तो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ रहा है मेरा एफ एक्स बढ़ता ही जा रहा है। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा। ओके मैम। ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स पे कि जब क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन से पॉइंट्स हुए कि वो सारे पॉइंट्स जहां पे मेरा डेरिवेटिव वैनिश करेगा। ठीक है। इसी तरह से अब सी ग्रेजुअली आई एम कमिंग टू व्हाट यू हैव स्टडीड एज मैक्सिमा मिनिमा। मैं धीरे धीरे उसी पे आ रही हूं। देखो अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि देखो जैसे ही हमने ये किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हमारे पास दो चीजें आ गई। नंबर 1, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। नंबर 2, वहां पे मेरी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब वो पॉइंट उस ग्राफ का रिटर्निंग पॉइंट हो गया या चेंजिंग पॉइंट हो गया। अगर इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था, तो उसको वापस आना पड़ेगा, घट रहा था तो उसको वापस जाना पड़ेगा, और स्मूथली जाना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। अगर सबसे पहले चीज हमने क्या करी, हमको जो एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सपोजिंग ये ले लो तुम्हारा एफ एक्स है, मैं बुक का एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3x² - 6x - 9। ठीक है। अब मुझे ये डिफाइन करना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है। राइट। तो इस सॉरी दिस इज नॉट माय एफ एक्स, आई एम f dash x actually. Let my fx be x³ - 3x² - 9x + 1. Okay. And I have to test whether this function is increasing or decreasing, and I have to find the intervals in which it is increasing or decreasing, if it is increasing and decreasing both. Okay. So as I said, what do? You find f dash x. What will be f dash x? 3x² - 6x - 9। ये हमारा f dash x आ गया। ठीक है। अब देखो इट इज अ पॉलिनोमियल, इसमें x² की टर्म्स भी हैं, इसमें -6x भी है, -9x भी है। तो हम डायरेक्टली तो नहीं देख के बता सकते ना कि x कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। राइट। सो टू डू दैट व्हाट वी डू इज we simply find the points where f dash x is 0. Now f dash x equal to 0 का मतलब क्या हुआ? 3x² - 6x - 9 is 0. Now can you factorize this polynomial and Yes, give me ma'am. the values? 3 are the roots. Roots क्या है? -1 and 3. -1 and 3. So basically ये आपका आया 3 × x + 1 × x - 3 is equal to 0. फैक्टर होके यही बने होंगे ना। ठीक है। That means either x is -1 or x is 3. अब देखो हमारे पास मैं रफ बताऊंगी कैसे। हमारे पास ये रही एक्स एक्सिस मेरी। ठीक है। -1 ये रहा और 3 यहां पे कहीं होगा। ठीक है। जब x -1 है तो यहां पे मेरा f dash x 0 हो गया। Am I right? Similarly, Yes. when x is 3 तब भी f dash x 0 हो गया। दोनों में से कोई भी हो तो मेरा f dash x 0 हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? x = -1 और x = 3 पे मेरा f dash x
0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब भी मेरा ग्राफ इन पॉइंट्स को क्रॉस करेगा, ठीक है, ग्राफ तो बन रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मुझे नहीं पता क्या शेप बन रही है, अभी मैंने प्लॉट नहीं करा उसको, राइट? लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि जैसे ही मेरा ग्राफ, जब मेरा x क्या है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, fx क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे जैसे x की वैल्यूज चेंज होंगी, मेरे fx की वैल्यूज भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ यहां पहुंचेगा -1 के पास, जैसे जैसे मेरा x पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो 0 हो रहा है। इसका मतलब मेरा यहां पे कहीं ना कहीं टेंजेंट बनेगी ऐसे उस ग्राफ पे, जो पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस पे। इसी तरह से उसके बाद वो चाहे जैसे मर्जी बिहेव करे, लेकिन 3 पे आके फिर वही चीज होने वाली है। ये बात ठीक हो गई ना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और 3 मेरे पास क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि इन पे मेरा डेरिवेटिव वैनिश कर रहा है। और ये क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ये मेरे को बताएंगे कि इन पॉइंट्स पे या इन पॉइंट्स से पहले और बाद में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए, तो इसका मतलब यहां पे मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ relative maxima और मैक्सिमा। बट अगर इसको क्रॉस करते हुए डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता, तो मेरा फंक्शन कैसा बनेगा? इस तरह का ग्राफ। उससे पहले कैसे भी आ रहा, डिक्रीजिंग आ रहा, तो कहीं से तो आ रहा है ना डिक्रीज होता हुआ। मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए उसके, मुझे सिर्फ शेप चाहिए। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा उस केस में? द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हैं हम अपने, या जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कह रहे हैं, ये पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रही हमेशा होंगे, पॉसिबली दे कैन बी द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब वो मैक्सिमा होगा यस मैम। या मिनिमा होगा, यस मैम। ये किस पे डिपेंड करेगा? डेरिवेटिव के साइन पे। कब? जब मेरा x इन पॉइंट्स को क्रॉस करेगा। ठीक है, इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला था, और वही अब हमारे काम आएगा। मतलब हम पहले देखेंगे फॉर x लेस देन -1, x लेस देन -1 मतलब -2 ले लो, यहां पे कोई पॉइंट लेना ना हमने। तो जब हमने x को -2 लिया, तो हमारे f डैश x का साइन क्या हुआ? मैं यहां पे अब f डैश का साइन लिखूंगी, ओ सॉरी, हाँ हाँ, f डैश का पहले साइन लिखूंगी। x लेस देन -1, x को -2 पुट करो क्विकली, आई थिंक आवर क्लास इज गोइंग टू नेगेटिव। f डैश इज नेगेटिव मैम। नेगेटिव। नेगेटिव। अब -1 से थोड़ा बढ़ा दो, नेगेटिव। नेगेटिव। 0 कर दो, 0 कर दो या -½ कर दो, कुछ भी कर दो। नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे डेरिवेटिव ने तो अपना साइन ही नहीं चेंज किया। ठीक है, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब जो -∞ से मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ, अब इस यही चीज 3 पे करो, 3 से थोड़ा पहले। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाउ इज इट पॉसिबल? 3 से थोड़ा पहले, टेक इट 2। मैम
नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव, और 3 से थोड़ा बाद पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे चेंज हुआ, जब मैंने 3 को क्रॉस किया तो मेरा फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब देखा जाए तो मेरा फंक्शन जो -∞ से 3 तक था वो कैसा था कि जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव ही रहा। इसका मतलब -∞ से 3 तक तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, यस मैम, और 3 क्रॉस करने के बाद मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। यस मैम, इसका मतलब 3 becomes a point of minima, but -1 does not, though -1 is a critical point. So that means every critical point need not be a point of maxima or minima. Critical point is a possible point of maxima or minima. Possibly वहां पे maxima या minima हो सकता है। होगा या नहीं वो कैसे पता लगेगा? जब हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन को चेक करेंगे, उससे थोड़ी पहले और थोड़ी बाद में। ओके, सो ये इस पॉइंट पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट को हम मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट मान ही लेते हैं। नो, नॉट नेसेसरीली। क्रिटिकल पॉइंट्स मींस द डेरिवेटिव वैनिशेस, बट डेरिवेटिव वैनिशिंग डज नॉट मीन कि वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा ही करेगा। हाँ जी, बोलो क्या पूछ रहे हो? अगर 3 के बाद भी नेगेटिव आता तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होते। हाँ, तो हमारा फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीजिंग रहता, क्योंकि हमारा f डैश नेगेटिव रहता। मैम हाँ, x इज इक्वल टू -2 पर f डैश x पॉजिटिव आएगा। यस मैम। तो फिर तुमने यहाँ पे गलत बताया। मैंने तो पॉजिटिव कहा था। तो अब ये तो तुमने गलत बताया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो सॉल्व नहीं करा। चलो ऐसे करते हैं, अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस प्रॉब्लम को फिर से करेंगे, ठीक है? ठीक है।